If the smallest number is added to the largest and divided by the third number, the answer will, according to the question, if we divide this 16 with the third number, so the answer will be 4. Assalamualaikum class, my name is Bilal Ahmad and in today's video we are going to talk about PMA 154 test preparation MCQs part number 16. ये हमने PMA 154 टेस्ट प्रिपरेशन MCQs 2024 के नेम से एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें हम PMA 154 की प्रिपरेशन करते हैं। इसी प्लेलिस्ट में मैंने 15 वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें आप लोगों के टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। और आज की वीडियो में हम इसी प्लेलिस्ट के पार्ट नंबर 16 को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और किसी भी MCQs को स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The first MCQ is, who is the current Prime Minister of United Arab Emirates? यूनाइटेड अरब इमारात इसे हम सिंपली UAE भी कहते हैं, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और इसके जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो है मोहम्मद बिन राशिद बिन अल मखतूम। स्टूडेंट्स, मोहम्मद बिन राशिद जो है ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी ही इज़ अ रॉयल एंड ही इज़ द 4th PM ऑफ UAE। मोहम्मद बिन राशिद से 3 PM पहले गुजर चुके हैं and now in present he is the 4th PM of United Arab Emirates. Excuse number 2 is, which country holds the chairmanship of G20 countries for the year 2024? As you people have a little bit idea, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसका जो चेयरमैनशिप होता है वो हर 5 साल बाद या 4 साल बाद नेक्स्ट कंट्री के पास ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी अगर 4 साल के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के साथ यानी उसकी जो चेयरमैनशिप थी वो पाकिस्तान के साथ थी, तो नेक्स्ट 4 ईयर के बाद वो सऊदी अरेबिया के पास चली जाएंगी। सो सेम लाइक दैट यहाँ पर बात हो रही है G20 ऑर्गेनाइजेशन की और इसकी जो करंट चेयरमैनशिप है वो है ब्राज़ील के साथ। It's mean that in 2024 the chairmanship of G20 is with Brazil. In some cases we have asked a question that what is the second name of G20. So another name for G20 is Group of 20. और यहाँ पर हम स्पेसिफिकली 2 यूनियंस की बात करेंगे जिन्होंने मिलकर ये G20 ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। एंड द नेम ऑफ दीज 2 यूनियंस आर यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन। And if we talk about the date of formation on which the G20 is formed, so वो डेट था September 26, 1999. Excuse number 3 is, which is the second most spoken language in the world? तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग प्रीवियस रिपोर्ट्स देखोगे तो उसके मुताबिक जो सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है वो है स्पेनिश। But here, according to the 2024 report, the most spoken language in the world is English, and the second most spoken language in the world is Mandarin. And if we talk about the previous reports before 2024, so उसके मुताबिक जो मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज थी वो थी मैडारिन और सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज वो इंग्लिश थी। लेकिन हमने चूंकि करंट अपडेट्स देखने होते हैं, सो करंट अपडेट्स के मुताबिक the most spoken language in the world is English. The second most spoken language in the world is Mandarin. So you have to note these points. Excuse number 4 is subject of Holy Quran. तो Holy Quran का जो subject है वो है man or simply we can say human. Here I have to give some information about Quran. So as you people know that the total chapters or we can say the total para in the Holy Quran are 30. And the total number of surah in the Holy Quran are 114. And if we talk specifically the heart of Holy Quran, so the heart of Holy Quran is Surah Yasin, and the beauty of the Holy Quran is Surah Rahman. Excuse number 5 is blank prophets are mentioned in the Holy Quran. So as you people know that पूरे वर्ल्ड में अभी तक पूरे कायनात में 1,24,000 कम व बेश पैगम्बर अल्लाह ताला ने भेजे हैं। But not all of these are mentioned in the Holy Quran, but only
26 out of 1,24,000 are mentioned in the Holy Quran. And that prophet whose name is mostly mentioned in the Holy Quran is Musa alayhi salam. और अगर हम मूसा अलैहिस्सलाम के बाद सेकंड प्रॉफिट की बात करें जिनका जिक्र कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा आया हुआ है तो वो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम. Excuse number 6 is hospital is to nurse as teacher is to. So as you people know that hospital में होते हैं nurse, so teacher जो है वो होते हैं school में. Excuse number 7 is if the smallest number is added to the largest and divided by the third number, the answer will be. यहाँ पर हमें एक कंडीशन दिया गया है एंड द कंडीशन इज दैट अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर को थर्ड नंबर के साथ ऐड करें एंड इफ वी डिवाइड द रिजल्ट ऑफ दीज टू बाय द थर्ड नंबर सो व्हाट विल बी द आंसर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम 2 को 14 के साथ ऐड करेंगे so the result will be 16 and according to the question if we divide this 16 with the third number so the answer will be 4. Excuse number 8 is Pakistan Beyond the Crisis State is written by. So Pakistan Beyond the Crisis State is a name of book and it is written by Maliha Lodhi. मलिहा लोधी जो है ये पाकिस्तान की 2 टाइम्स एम्बेसडर रह चुकी हैं. एक टाइम ये पाकिस्तान से एज एन एम्बेसडर थी टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड सेकेंड टाइम शी इज़ एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू यूके. Excuse number 9 is Sumo is considered the national sport of which country? So जिस तरह हमारे कंट्री का एक नेशनल स्पोर्ट हॉकी है so same like that Sumo is the national sport of जापान. अगर हम चाइना की नेशनल स्पोर्ट की बात करें तो वो पिंग पोंग है या आप उसे टेबल टेनिस भी कह सकते हो. यहाँ पर बात की गई है साउथ कोरिया की. सो द नेशनल स्पोर्ट ऑफ साउथ कोरिया इज टोएक्वोंडो एंड द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ नॉर्थ कोरिया इज कोरियन रेसलिंग. Excuse number 10 is gulab jamun is a popular dessert of which cuisine? तो यहाँ पर शुरू में मैं भी यही समझ रहा था कि डेज़र्ट मेरे ख्याल से मैंने कहा सहरा को कहते हैं लेकिन जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो डेज़र्ट मीन ये जो रेसिपी है ये कहाँ की है. तो वैसे तो गुलाब जामुन पाकिस्तान में भी मिलते हैं नो डाउट और अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं लेकिन ये इंडियन क्रोसीन है तो ये आपने याद करना है. Excuse number 11 is capital city of Azerbaijan is. तो स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर दैट पॉइंट कि जब भी आप पीएमए के टेस्ट देने जाओगे तो आपने करेंसीज और कैपिटल्स को लाजमी से देख के जाना है क्योंकि उसमें जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है और जनरल नॉलेज के पोर्शन में जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके कैपिटल्स और करेंसीज. तो हेयर द कैपिटल सिटी ऑफ आज़रबाईजान इज बाकू. विना इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया. Canberra is the capital city of Australia and Kabul is the capital city of Afghanistan. Excuse number 12 is capital city of Bahrain is. So the capital city of Bahrain is Manama. Rome is the capital city of Italy. Tehran is the capital city of Iran. और आप लोग ब्रसल्स देख लेना ये मेरे माइंड में इस टाइम नहीं आ रहा कि ब्रसल कौन सी कंट्री की कैपिटल है. Excuse number 13 is करेंसी ऑफ पाकिस्तान इस. तो पाकिस्तान की जो कैपिटल सिटी है वो है इस्लामाबाद एंड द करेंसी ऑफ पाकिस्तान इज पाकिस्तानी रुपीज़. टका इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश एंड युआन इज द करेंसी ऑफ चाइना. Excuse number 14 is 30% of 20 is. So in previous videos we already discussed about two conditions. The first condition is that if this number and this number, if these both are same, so what we have to do? Let's suppose मैंने कहा कि भी 30 है और ये भी 30 है तो ये इस तरह होगा ना 30% होगा और यहाँ भी 30 होगा. So what we have to do, the thing we have to do is that we have to cancel this 0 with 0 and we have to multiply this number with this. But here the condition is opposite. Why the condition is opposite? Because this number and this number both are changed. So solution is like that कि हमने 30% को परसेंट की जगह हम हमेशा 1/100 लगाते हैं, ये आपने याद रखना है. तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय 20. तो हम 30 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30/100 मल्टीप्लाई बाय
20। 30 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.3, और आप इसको 20 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6। MCQ number 15 is, who is the national poet of Pakistan? So as you people know that the national poet of Pakistan is Allama Muhammad Iqbal. तो स्टूडेंट्स पीए में 154 टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज़ का ये था पार्ट नंबर 16। उम्मीद करता हूँ आपको आज के तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में या मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।